are not going to just see the content which is given in the book. हम वो फोर्स कितने एरिया में लगा रहे हैं. What happens? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. The net resultant force is zero. Surface area is more. बस इसको देखा और देख के मैंने इसको बोला गिरना मत. कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए you can write it. Why the water is not coming? पहली लाइन है सारा आंसर कर दिया. This is rubber circle. So that you will get a proper understanding and memory as well. Hello dear students. Welcome to YD's Concept Classes. I am your mentor Yogita Dhami. So this is the space for class 6 to 8 students where we're going to cover up everything about the science with lots of fun, experiments and some activities. Okay? Right now we are going to cover up the second term syllabus first, and in this journey today we're going to start chapter 8 of class 8 science, that is force and pressure. Okay? So let's get started without wasting much time and see what are we going to study here. We are going to study everything about force, characteristics of force, types of force, their differentiation, contact force, non-contact force in detail, then pressure, fluid pressure and atmospheric pressure. And what I've told you, we are not going to just see the content which is given in the book. We will do lots of activities with each and every topic so that you will get a proper understanding. Am I clear? Okay, so let's move ahead and see what is force. Before we go deep into the definition of force or the concept of force, let us do a simple activity. Right now, pick up any one thing which is in front of you. कुछ भी उठा लो आप. Whether it can be a book or a pencil or a pen, anything. अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो एक जिसमें फोन वीडियो देख रहे हो ना वो फोन उठा लो. ठीक है? And let's do one activity. So whatever you are holding, try to move it away from you. जैसे मैंने रिमोट को दूर कर लिया, वैसे आप भी दूर करो. Now try to bring it near you. Everybody must be doing. करो just देखना नहीं है वीडियो. Do some activities. So what we are doing, first we are trying to move this object away from us and then we are bringing near. Isn't it? Now, whenever you are doing such activity, don't you think you are applying some force? कोई ऐसा है जिसने सिर्फ कमांड दिया ऑब्जेक्ट को कि चलो दूर जाओ और पास आ जाओ? ऐसा कोई है? I don't think so. Until unless you are a magician. Isn't it? So for doing such activity, simple activity also, we are applying some force. Now how we are applying force? Think about it. When we are trying to move this away, don't you think we are pushing it away? Yes? देखो कभी भी किसी को धक्का देते हो तो वो दूर जाके गिरता है ना, वो हमेशा दूर जाता है. धक्का देने पे हमेशा कोई भी चीज दूर जाती है. So we are trying to push it and it is going far, isn't it? And now when you are trying to bring it near you, so means you are pulling it? Yes or no? So here the force that we have applied in this simple object was in the form of push or pull, isn't it? Actually, this is the definition of force. Very simple. Force is always in the form of push or pull, or we can say when a push or pull is applied on an object, that is only called force. अब आप सोच रहे होगे ऐसे कैसे? हर चीज में हम पुश और पुल थोड़ी लगाते हैं. हम कभी किक करते हैं, कभी हिट करते हैं, कभी कुछ हम ऐसे उठा लेते हैं, सही ना? तो हम डिफरेंट टाइप के एक्शन करते हैं, हमेशा पुश और पुल तो नहीं करते. ओके, होल्ड ऑन. एक्चुअली वट एवर एक्शंस वी आर डूइंग इन आवर डेली लाइफ, दे फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इधर पुश और पुल. ठीक है? इसको समझेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में. ठीक है? अभी देखो आगे. द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. एसआई यूनिट यू मस्ट बी नोइंग ऑलरेडी. हर चीज की एक एसआई यूनिट होती है, एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है. ऐसे ही फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? न्यूटन. एंड व्हाट इज द सिंबल? कैपिटल एन. तो आगे से हम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर हम न्यूटन पक्का लिखेंगे. ठीक है? ओके, नाउ लेट्स सी हाउ यू कैन डिफाइन दिस पुश और पुल. सिंपल वर्ड्स, लेकिन लिखेंगे क्या? यहां देखो, ये देखो. द फर्स्ट, दिस बॉय इज ट्राइंग टू पुश दिस ट्रॉली अवे, दिस बॉक्स अवे. तो अपने से वो दूर कर रहा है, धक्का दे रहा है ना? और ये क्या कर रहे हैं? ये इस टेबल को पुल कर रहे हैं. मीन्स ही इज ट्राइंग टू टेक इट नियर. Isn't it? So that is the definition of push and pull. So push when object is moving away from the applier. अभी इससे ना ये वर्ड अप्लायर बहुत बार यूज होगा. Who is the applier? हमने जो अभी एक्टिविटी करी तो अप्लायर कौन थे? यहाँ पर इस रिमोट के साथ मैं, I was the applier. If you are doing the activity, you were the applier. तो applier means the source of force. जो force लगा रहा है ना उसको applier बोलेंगे. ठीक है? Okay. So when the object moves away from the applier, that is push. When the object will come near the applier, that is a pull, isn't it? Okay, let's move ahead and check out this table. This is the NCERT table, table 8.1. In this, different type of actions that we do in our daily life, that those are given, और उसके साथ कुछ actions के नाम भी दिए हुए हैं. ये देखो यहाँ पे एक्शन दिए हुए हैं, है ना? आपको इन एक्शंस में से आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन सा यूज करते हैं और
वो पुश या पुल की कैटेगरी में फॉल होता है कि नहीं, ये भी आपको देखना है, ठीक है। सो लेट्स चेक आउट वन बाय वन। फर्स्ट वन इज गिवन फॉर योर हेल्प, सो वो बहुत ईजी भी है। नेक्स्ट देखते हैं, ओपनिंग और शटिंग अ डोर। देखो डोर ऐसे खोलोगे तो या तो हम पुश करेंगे, दूर जाएगा, या तो अंदर को खुलने वाला होगा तो पुल भी हो सकता है ना। तो डोर कैन बी पुश्ड और पुल्ड। उसके आगे क्या कर सकते हैं, देखो, कैन डोर बी लिफ्टेड? नो। विंडो डोर की कुछ विंडोज होती है जहां पे ऐसे लिफ्ट हो जाती है, लेकिन डोर नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ दो ही एक्शन होंगे, दैट इज पुशिंग and pulling, isn't it? And both will fall under the category of push and pull. Yes or no? Okay. Next, drawing a bucket of water from the well. अगर आप पानी की बाल्टी कुएं से निकालोगे तो पहले डालोगे एंड देन उसको फिर खींचोगे, है ना। तो अगर हम उसको नीचे को डाल रहे हैं तो एक तरह से हम उसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं नीचे को, है ना। और जब हम उसको खींच रहे हैं ऊपर को, इट मीन्स हम उसको पुल कर रहे हैं। अब एक्शन कौन सा होता है वो देखेंगे। सो पुशिंग, पुलिंग, पुलिंग तो होता ही है, यस। So pulling, and then picking, hitting, lifting. Yes, we are lifting that bucket, isn't it? So lifting, and what else? Lowering. Yes, हम जब बकेट को नीचे को डालेंगे तो लोअर कर रहे हैं ना उसको, so lowering. Anything else? Flying, kicking, throwing? No, I don't think so anything else. So these are the three actions that we can do when we draw the bucket of water, and these all will fall under the category of push and pull. कौन कौन से पुश है? पुश इनमें से हो जाएगा लोअरिंग वाला, और पुल में कौन सा हो जाएगा? पुलिंग एंड लिफ्टिंग बोथ आर द एक्शन ऑफ पुलिंग ओनली। क्लियर? ओके, मूविंग अहेड। अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक। सो पेनल्टी किक में क्या कर रहा है वो? फुटबॉल को आगे जाके गोल पोस्ट में डालेगा ना, सो किक कर रहे हैं, isn't it? So it is a kind of pushing. तो कौन सा वाला होगा? So kicking is there. Kicking, and kicking is a category of push. There will be no pull in such case. कभी भी पेनल्टी लेने में पुल नहीं हो सकता, हमेशा पुश ही होगा। अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन। अब बॉल आई और बैट्समैन ने मार दिया तो दूर फेंक दिया, तो उसको क्या किया? पुश किया बॉल को, isn't it? पुल नहीं किया, ओनली पुश। नाउ विच action is there for that pushing? So pushing, pulling, picking, hitting. Yes, hitting is there, है ना, hitting। और कोई एक्शन बता सकते हैं? Lifting, lowering, flying, kicking, throwing, shooting, flicking. Flicking can be there. कभी सुना ऐसे बोलते हैं ना ऐसे कि बैट्समैन ने फ्लिक कर दिया बॉल को towards the boundary. Yes or no? So flicking. Flicking is there. So both are under the category of push. There will be no pull in that case. Moving ahead. मूविंग अ लोडेड कार्ट। सो कार्ट में सामान डाला, अब नाउ मर्जी आपकी है कि आप उसको पीछे से धक्का दे दो, या तो आप आगे से कोई एनिमल लगा लो, या कोई भी मतलब आगे से खींच लो उसको, isn't it? So pushing and pulling both are possible in this case while moving the loaded cart. Now which of the action? Pushing will be there, yes. So you can push that cart, you can pull that cart. Anything else that you can do? No, nothing else. So pushing or pulling, these two actions are possible in moving this cart, and both will fall under the category of push and pull. ठीक है? Okay. Now moving ahead, opening a drawer. So drawer को आपने open करना है. So drawer open करने में हमेशा pull ही चाहिए होता है. You can't push. Push से तो फिर बंद हो जाएगा ना. It will be closed. So pulling. The first thing will be pulling only. Anything else? No. Nothing else. Only pulling will be the action, and here there will be no push. There will be only pull. Got it? So after solving this question, I hope your concept is clear and you got to know that every action that we do in our daily life is either in the form of a push or a pull. Though the names are different, but actually it is a form of push and pull only. Got it? Okay. Now after this, we are moving for the characteristics of force. Okay? Let's check out the first characteristics. The first characteristic of force is whenever we apply force on any object, the interaction is required between the object and the applier. देखो हमने अभी वो एक्टिविटी करी थी ना जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को मूव किया था, तो वहां पर आपने उसके साथ इंटरैक्ट किया। जिस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया उसको आपने उसको टच किया, उसके बाद उस पर फोर्स लगाया। यस और नो? सो देयर वाज अ काइंड ऑफ इंटरैक्शन। जहां पर आपने का इंटरैक्शन नहीं था उस ऑब्जेक्ट में आपका फोर्स नहीं लगा, isn't it? But does always this interaction require the touch? No, there are some interactions, there are some cases where force can be applied without touching also, but interaction is required. What I'm saying, for example, magnetic force, जहाँ पे हम दो मैग्नेट को साथ में लाते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है,
सो देयर इज इंटरेक्शन एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ रिपल्शन और अट्रैक्शन, लेकिन वहां टचिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट दिस काइंड ऑफ फोर्स इन डिटेल फर्दर. मूविंग अहेड, नेक्स्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट मल्टीपल फोर्स मे एक्ट एट अ टाइम. ठीक है, एंड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट. अब इसका क्या मतलब है, देखो यहां पर मैंने रिमोट पकड़ा हुआ है. सो फर्स्ट केस, इंटरैक्शन इज देयर बिटवीन द फोर्स अप्लायर एंड द ऑब्जेक्ट. नाउ how many forces are there in this object right now? I am holding this, so I am applying muscular force on this, but there is always a gravitational force as well. तो यहाँ से इसको ग्रेविटी नीचे को भी तो खींचने का ट्राई कर रही है ना. जैसे ही मैं हाथ हटाऊंगी यहाँ से, ये सीधे नीचे आके गिरेगा. Yes or no? So at one time in an object multiple force can be there. ठीक है, अब उन मल्टीपल फोर्स में से इफेक्ट कौन सा दिखाएगा, वो कैसे पता करते हैं? अगर वो फोर्स है वो या तो ऐड होंगे या तो सब्ट्रैक्ट होंगे और उसके बाद हमको उस पर इफेक्ट दिखेगा. ठीक है, इसको समझने के लिए देखते हैं आगे. हैव अ लुक हियर, दीज आर द टू डायग्राम्स. ठीक है, दीज टू पर्सन्स, लेट्स से A and B, and this A is applying 5 Newton of force and the B is applying 10 Newton of force. ठीक है, यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल अच्छे फ्रेंड बने थे और दोनों ने बोला चल आजा मिलके हम इसको बॉक्स को खिसका लेते हैं. ठीक है, तो दोनों ने मिला के इसको बॉक्स को खिसकाया. बाद में जाके इनकी हो गई लड़ाई. अब इसने बोला अच्छा मैं ज़्यादा लगा रहा हूँ, मैं दिखा दूँ तेरे को. और ये बी वाले भाई साहब यहाँ पहुंच गए, ये 10 न्यूटन यहाँ चला गया और ये 5 न्यूटन इधर ही रह गया. ठीक है, नाउ सी व्हाट विल बी द इफेक्ट व्हेन दीज टू वर फ्रेंड्स एंड दे वर अप्लाइंग द फोर्स टुगेदर. तो क्या कर रहे थे, दोनों का फोर्स मिल के इस बॉक्स को मूव कर रहा था. तो मिल के मीन्स these two will be added and the total force will be 15 न्यूटन. 15 न्यूटन से ये बॉक्स इधर को खिसका रहे थे. ठीक है, अब ये किधर को खिसका रहे थे, हम कैसे यहाँ पे क्या बोलेंगे, सो कौन सी डायरेक्शन. सो वट एवर इज इन योर राइट हैंड साइड दैट इज कॉल्ड RHS, right hand side. Whatever comes in front of your left hand side that is called LHS, left hand side. So we will say the box is moving towards the left hand side with the force of 15 Newton. हम यहाँ पे 5 न्यूटन और 10 न्यूटन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम टोटल फोर्स को बोलेंगे 15 न्यूटन. और हमने यहाँ पे क्या किया, दो फोर्सेस को ऐड कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पे जब इनकी हो गई लड़ाई तो ये क्या कर रहे हैं, अब आपस में कंपटीशन कर रहे हैं ना एक तरीके से. सो ही इज ट्राइंग टू, द A is trying to push it towards the left hand side and B who is applying the force of 10 Newton is trying to push it towards the right hand side. अब किसकी ताकत ज्यादा, ऑब्वियसली है ना इसकी ज्यादा. तो ये तो पता है कि बॉक्स यहाँ को मूव करेगा. अब कितने फोर्स से मूव करेगा, 10 न्यूटन से मूव कर जाएगा क्या, नो. वाई, बिकॉज पहले तो जितनी ताकत ये लगा रहे हैं वो पहले तो इसकी ताकत को काउंटर करने में लगेगा ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही नीड्स टू काउंटर द फोर्स ऑफ दिस A. तो कितना फोर्स यहाँ पे कितना का फोर्स काउंटर करना है, 5 न्यूटन का. सो व्हाट वी विल डू, 10 - 5 न्यूटन, तो वी विल गेट 5 न्यूटन इज द आंसर. इसका मतलब right now in this condition the box will move towards the right hand side with a force of 5 Newton. यहाँ पर क्या हुआ, हमने subtract कर दिया. Don't worry, we are going to solve much more questions on this concept. Let's move ahead and see. So what we got to know, when two or more forces applied in same direction, so क्या होगा same direction में, addition, सब मिल के काम कर रहे हैं. When two or more forces are applied in opposite direction, they are subtracted from each other. Am I clear? Okay, moving ahead. अब यहाँ पर जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर देते हैं ना, उसके बाद जो हमें फोर्स मिलता है उसे बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स. व्हाट वी से दैट, रिजल्टेंट फोर्स. हैव अ लुक, द नेट रिजल्टेंट फोर्स इज द एक्चुअल फोर्स विच शोज एनी इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट. अभी हमने इससे पहले क्या देखा था, दो लोग मिलके फोर्स लगाए थे लेकिन उन दोनों का इंडिविजुअल काउंट नहीं कर रहे थे हम. 15 न्यूटन वॉज काउंटेड, है ना, दोनों का एडिशन करने के बाद. सो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है ना, उसको हम रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं. और वो रिजल्टेंट फोर्स ही है जो उस ऑब्जेक्ट पे कुछ चेंज दिखा रहा है. ठीक है, ओके, मूविंग अहेड. इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 0 द बॉडी रिमेन्स एट इट्स स्टेट. ठीक है, अगर रिजल्टेंट फोर्स हमारा 0 आया तो इसका मतलब बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं करेगी. क्या मतलब है इसका, हैव अ लुक हियर. ये क्या चल रहा है यहाँ पर, दिस इज टग ऑफ वॉर, पता है ना. हाँ, जो लेट्स से दिस इज टीम A एंड दिस इज टीम B. अब दोनों ने अभी अभी रस्सी पकड़ी है, बड़े जोश में दोनों, और बिल्कुल फुल ताकत लगा रहे हैं. एंड बोथ आर अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एंड दिस इज ऑल्सो अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन. अब इनकी डायरेक्शन इधर को है और इनकी डायरेक्शन दूसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन.
तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को काउंटर करेंगे ना, काउंटर करेंगे तो माइनस करेंगे। तो अगर हम यहाँ इस फोर्स को माइनस कर देंगे तो क्या मिला हमें, जीरो। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, जीरो। सो व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स, अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे लिखा जाता है, फोर्स रिजल्टेंट फोर्स ऐसे लिख सकते हैं, F सबस्क्रिप्ट में R, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स इज राइट नाउ जीरो। तो यानी कि कुछ फोर्स, नेट फोर्स है ही नहीं, इसका मतलब ये जो रोप है वो अभी ना तो इधर को जाएगी ना इधर जाएगी, मीन्स इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट। Am I clear? समझ में आया अभी? So when the resultant force is zero, the object does not change its state, and this time the force is called balanced force. Moving ahead, let's say कुछ देर बाद टीम भी थक गई, ठीक है, अब इन थोड़े बस कमजोर बढ़ गए हैं, तो इन्होंने अब अप्लाई किया है 40 न्यूटन ऑफ फोर्स, ठीक, और इनको पता पड़ गया कि अच्छा भैया थक गए, अब थोड़ा सा फोर्स हम एक्स्ट्रा लगा लेंगे ना तो हम जीत जाएंगे। सो नाउ दे आर अप्लाइंग 60 न्यूटन ऑफ फोर्स, टीम बी, टीम ए, ठीक। नाउ फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स। अभी दोनों का साइड तो अपोजिट ही है ना, तो यहाँ पे होगा माइनस, कितना आया आंसर, 20 न्यूटन, ठीक। सो राइट नाउ यू हैव गॉट द वैल्यू मोर देन जीरो, तो 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब किस डायरेक्शन में लगा रहा है और कौन सी टीम लगा रही है, तो ये एक्स्ट्रा लगा रहे हैं तो टीम ए, और इनका डायरेक्शन है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो रोप कहाँ को जाएगी, रोप विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, got it, and this team will win, team A will win, and here this type of force is called unbalanced force। यहाँ पे unbalanced है ना, इसने ज्यादा लगाया इसने कम लगाया तो unbalanced हो गया, ठीक है। Let's check out the difference between the balanced and unbalanced force here। What is balanced force, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया सेम वही लिखा हुआ है, क्विकली एक बार पढ़ लेते हैं। Force acting from all the direction on a body are equal and opposite, then they cancel out each other and the net resultant force is zero। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, the net resultant force is zero। ऐसे में क्या मोशन होगा, नहीं होगा, जो भी स्टेट होगा उस ऑब्जेक्ट का, अगर वो चल रहा होगा तो चलता ही रह जाएगा, अगर रुका होगा तो रुका ही रह जाएगा, चलता ही रहेगा। मतलब लेट्स से आप एक बॉल ले गए और स्पेस में जाके छोड़ दिया ना, स्पेस में कोई ग्रेविटी कुछ उस पर अभी एक्ट नहीं कर रहा है ना, तो क्या होगा वहां पर वो ऑब्जेक्ट अगर आप जिस स्पीड से छोड़ोगे वो स्पीड से चलता ही रहेगा फॉर एवर, अनटिल अनलेस इट इज गोइंग टू हिट, इट इज गोइंग गेटिंग सम फोर्स फ्रॉम सम एक्सटर्नल बॉडी। yes or no, that is the condition written here। so it will not change state of motion or state of rest। अगर वो चलने वाली कंडीशन में होगा तो चलता ही रह जाएगा अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो, और स्टेट ऑफ रेस्ट अगर रुका होगा तो रुका ही रहेगा, ठीक है। मूविंग हेड, अनबैलेंस्ड फोर्स, इन दिस फोर्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज मोर, एक साइड का फोर्स हमेशा ज्यादा होता है, और नेट फोर्स जो हमें रिजल्टेंट फोर्स होता है उसकी वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ होती है, जीरो नहीं हो सकता मतलब, ठीक है। एंड इन दिस हियर द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, जहां से ज्यादा फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। गॉट इट? चलो मूविंग अहेड, नेक्स्ट these are some practice questions for you, and these after solving these questions you will get much more clarity for understanding this balanced and unbalanced force। और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्की बात है कि आएगा या तो आपके PT2 में या फिर आपका यूटी, अगर UT2 होते तो UT2 में, अदरवाइज फाइनल में एक बार ऐसे क्वेश्चन पक्का आते हैं। दीज आर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, what is this? This picture will be given in the your let's say exam, और उसमें पूछेंगे कि what will be the resultant force and where the direction, what will the direction of this box, where it will move, ठीक है। Let's find out। Let's say west और east इनके नाम है, वैसे तो डायरेक्शन है, नाम ले लेते हैं। अगर नाम पसंद नहीं आ रहा तो ए भी लिख लेना, बट अगर नाम चेंज करेंगे तो यू हैव टू राइट डाउन इन आंसर। ऐसा नहीं कि मर्जी नहीं है कि यहाँ पे ए बी लिख लिया और आपने ए बी के हिसाब से आंसर दे दिया। टीचर को कैसे पता पड़ा कि ए बी कौन सा ए है कौन सा बी है, isn't it? So you have to mention, if you are going to write down their name or mark them A or B, so you will write down, let's say west is A and east is B, ऐसे करके आपको mention करना पड़ेगा, then only you can solve, ठीक है। बेस्ट तरीका क्या है, जो दिया है उसी से सॉल्व करो। So here let's say west is applying the force of 7 Newton and east is applying the force of 10 Newton। आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, अगर देखो पहले तो डायरेक्शन चेक कर लो, एक दूसरे के अपोजिट है तो माइनस होगा, है ना। तो माइनस करने के लिए जो बड़ी यूनिट है पहले उसको लिख लो और उसके बाद छोटे वाले को। सो फोर्स ऑफ ईस्ट माइनस फोर्स ऑफ वेस्ट कितना है, 10 न्यूटन माइनस 7 न्यूटन। हाउ मच यू गॉट, 3 न्यूटन। सो रिजल्टेंट फोर्स विल बी 3 न्यूटन। अब कौन ज्यादा लगा रहा है, ईस्ट,
है ना। ईस्ट कहाँ को ज्यादा लगा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में। सो बॉक्स विल मूव विद द फोर्स ऑफ 3 न्यूटन टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। दैट्स इट। एनी प्रॉब्लम? अंडरस्टूड? ओके, चलो एक और देखते हैं। ये देखो, ये आ गए वेगन वाले क्वेश्चन, बहुत बार आए हुए ये क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स सॉल्व देम। यहाँ पे पूछते क्या है, ये 3 मार्कर क्वेश्चन है अपने आप में। इसमें पूछा क्या जाता है, यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स फर्स्ट एंड देन डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन। कई बार यहाँ पे एक और एडिशन आ जाता है कि फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो फटाफट निकालते हैं। केस ए में 2 फोर्स कौन से हैं, 20 न्यूटन और 10 न्यूटन। डायरेक्शन देखो, दोनों की डायरेक्शन इधर ही है, तो 1 डायरेक्शन हो गया, यानी कि एडिशन होगा, है ना। ये पुश कर रहा है और ये वाला पुल कर रहा होगा। तो क्या करेंगे, 10 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन एंड यू गॉट 30 न्यूटन, ठीक है। सो रिजल्टेंट फोर्स इज 30 न्यूटन एंड डायरेक्शन विल बी ऑब्वियसली इधर को जा रहा तो राइट हैंड साइड ही होगा। सो RHS, ठीक है। चलो मूविंग नेक्स्ट, बी। हियर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स आर देयर। ये जा रहे हैं राइट हैंड साइड में, ये जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, अपोजिट हो गया तो माइनस करेंगे। बड़ी वैल्यू पहले लिख लो। सो 40 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन, कितना आ गया आंसर आपका, ये हो गया आपका 20 न्यूटन, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स इज 20 न्यूटन। अब किस तरफ ज्यादा है, इट इज मोर टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, इधर को ज्यादा है ना, तो ये RHS में मूव करेगा। ओके, यहां पर कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये राइट हैंड साइड में मूव करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा। देखो, अगर जिसने फोर्स ज्यादा लगाया वो राइट हैंड साइड को जा रहा है तो राइट हैंड साइड को ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। अगर उसने फोर्स लेफ्ट हैंड साइड को लगाया है तो वो लेफ्ट हैंड साइड को मूव करेगा। मींस जहां से जो ज्यादा फोर्स लगाने वाले ने एक्ट किया है जिस भी डायरेक्शन में, हमेशा ऑब्जेक्ट उसी की डायरेक्शन में मूव करेगा, वेदर इट कैन बी अ पुश और अ पुल। राइट नाउ इट इज अ पुल, देखो ये 40 न्यूटन वाला पुल कर रहा होगा ना इसको, isn't it? That's why it is going towards the right hand side. ठीक है, चलो मूविंग अहेड। नेक्स्ट सी पार्ट। हियर 25 न्यूटन और 25 न्यूटन दोनों सेम है और डायरेक्शन देख लो अब इनकी, अगेन अपोजिट डायरेक्शन, सो माइनस। सो व्हाट विल बी द आंसर, 0 न्यूटन। 0 न्यूटन कौन सा फोर्स है यहाँ पर बताओ, 0 न्यूटन में क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स, एंड हियर देयर विल बी नो चेंज। We have to write down there will be no change. Got it? So these were some of the practice question. I hope you got the concept of balanced and unbalanced force very clearly. Now we are moving ahead and see what force can do. See, अभी हम तेरे से फोर्स पढ़ रहे हैं, है ना, कैसे एक्शन होता है वो सब देख रहे हैं, लेकिन फोर्स से होता क्या है उसको हम देखो। होता तो बहुत कुछ है, आपको पता ही है कि हम फोर्स से क्या क्या कर सकते हैं, आपके सामने कितने सारे एक्शंस होते हैं, आप करते हैं खुद। बट साइंस में यानी नोटबुक में आप क्या लिखेंगे, कैसे उसको समराइज किया जाता है। For understanding this, let's do an activity. Here in front of me there is a basketball which is not moving at all. Physics में अगर कोई चीज मूव नहीं करती तो उसको बोलते हैं रेस्ट पे है. So means this object is at rest right now. Okay, now I want to bring it into motion. तो क्या करना है, इस पे हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा. Let's say I have applied force in the form of push. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो अभी रेस्ट पे है, अगर हम इसको फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इट विल कम इनटू मोशन. Yes or no? This is the first effect of force. Force can bring object from rest to motion. ठीक है, coming to the second effect. Let's say the same ball is coming towards me with some speed. किसी ने इसको मारा होगा और ये मेरे पास किसी स्पीड से आ रही है और मैंने इसको रोक लिया. Now what happened? The object which was at motion is now at rest. Got it? So force can bring object from motion to rest. Now coming to the third effect. Let's say this ball is coming towards me very slowly and I want to move it fast. Let's say this is coming very slowly and I want to move it fast. What I've done? I've applied force. So force can change the speed of the object. Yes or no? Yeah. Coming to the fourth effect. Let's say this ball is coming towards me and goal is in front of me. So what I will do, if the ball is coming towards in this direction and now I'll apply force and I'll move it in another direction. Yes or no? So force can change the direction of the object. Am I clear? So these are the four effects that we can see with the help of ball. There is one more effect that force can do, and what it is? Force can change the shape of the object. Let's say this is an elastic band. If I will apply force, what will happen? It will change the shape. But you have to notice that it is not changing the position. It is just changing the shape. Yes or no? So these are the 5 effects of force. After doing this activity, I hope you got to know very clearly that what force can do. Let's quickly read it out. Force can bring object from rest to motion, motion to rest,
change the speed, change the direction and shape of the object. Change the shape of the object. Got it? These were the 5 things that we have just seen with the help of a basketball and with the help of a rubber band. ठीक है? Any problem? Okay. Now, whatever these effects that we have just seen with the help of force that force can do, now all those effects are dependent on the magnitude and direction of force. Not a very difficult concept. See, magnitude का मतलब क्या होता है? कितना ज़्यादा कितना कम. 10 न्यूटन 100 न्यूटन विच इज हैविंग मोर मैग्नीट्यूड, ऑब्वियसली 100 न्यूटन. तो 10 न्यूटन ज़्यादा इफेक्ट दिखाएगा कि 100 न्यूटन ज़्यादा दिखाएगा? ऑब्वियसली 100 न्यूटन ज़्यादा दिखाएगा, है ना. तो इफेक्ट किस पर डिपेंड कर रहा है? मैग्नीट्यूड पे. दूसरा इफेक्ट किस पर डिपेंड कर रहा है? डायरेक्शन पे. ये डायरेक्शन का इफेक्ट हमने अभी देखा था. देखो, जब 2 लोग मिलकर एक चीज़ को पुश कर रहे हैं तो इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा बिकॉज देयर आर सेम डायरेक्शन, एडिशन हो जाता है. व्हेन द डायरेक्शन विल बी अपोजिट तो क्या होगा? इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं आएगा बिकॉज दे विल काउंटर ईच अदर फर्स्ट, isn't it? तो वहां पे इफेक्ट फोर्स का कम हो जाता है. ठीक है, चलो मूविंग अहेड. Here there is one more table, that is table 8.2 given in your NCERT, and this table is given to give you a proper understanding that how force can change the shape of the object and how it is affecting the motion of the object. ठीक है, there are some conditions given, just have a look at them. देखते इसमें यहाँ पे हो क्या रहा है. चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन है कि नहीं है और चेंज ऑफ शेप है कि नहीं, हमें ये आइडेंटिफाई करना है. ओके, बिफोर सॉल्विंग दिस टेबल always understand one fact first. In physics हम कभी भी चेंज ऑफ मोशन कब कंसिडर करते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से कभी दूसरी पोजीशन यानी फाइनल पोजीशन पे जाता है, यानी उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए. इट मींस लेट्स से एन ऑब्जेक्ट इज हियर ए, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, तो यहां से ये हट के दूसरी जगह पहुंच जाना चाहिए बी तक, तभी इसको हम क्या कहेंगे? मोशन, चेंज इन मोशन बोलेंगे. ठीक है, अगर ये ए पे ही रह गया और यहीं पे ऐसे ऐसे कर रहा है, राउंड कर रहा है, तो हम उसको चेंज ऑफ पोजीशन नहीं बोलते हैं. ठीक है, नाउ हैव अ लुक हियर. फर्स्ट वन, नीडिंग अ डो. अगर बर्तन में आटा गूंथ रहे हो तो क्या आटा जंप करके कहीं और जा रहा है? नहीं, पहले भी बर्तन में था, अभी भी बर्तन में ही है ना. तो देयर इज नो चेंज इन पोजीशन. ठीक, हियर देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन एंड नो मैं सॉरी टिक करेंगे. एंड चेंज इन शेप, यस, शेप तो उसका चेंज ही होता रहता है. तो यस, यहां पर देखो साइकिल के क्वेश्चन में बैठे तो साइकिल में ही तो बैठे हैं ना. ठीक है, क्वेश्चन जैसे हमने बैठा तो ऐसा तो नीचे आ गए, वो बैठे क्वेश्चन पे, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बैठे और वहीं बैठे हैं, बस वो क्वेश्चन प्रेस हो गया. ठीक है, तो यहां पर अगेन नो एंड चेंज इन शेप, यस. यहां पे देखो इलास्टिक रबर बैंड टांगा हुआ था, इट वॉज हैंगिंग ऑन द नेल, यू स्ट्रेच्ड इट बट स्टिल इट्स इनिशियल पोजिशन इज एट नेल ओनली. आप छोड़ोगे तो नेल पे ही रहेगा. नो चेंज इन पोजिशन, नो. एंड शेप, यस. यहाँ पर स्केल इज देयर इन द 2 ब्लॉक्स, उस पर वेट रखा तो नीचे को बेंड हो गया, लेकिन है तो अभी भी ब्लॉक्स पे ही ना. ठीक है, शेप चेंज हुआ है, तो नो मोशन, शेप, यस. क्लियर? सो हाउ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. आई होप यू गॉट इट वेरी क्लियर आफ्टर डूइंग दिस टेबल. ठीक, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्स दैट वी हैव टू स्टडी. There are 2 types of force basically, contact force and non-contact force. ये थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन ना मैंने स्टार्टिंग में दे दिया था. ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स नाम से पता पड़ रहा है क्या होंगे? जहां पर इंटरैक्शन का मतलब क्या है? कॉन्टैक्ट चाहिए. ये रिमोट और मेरे हैंड के बीच में कॉन्टैक्ट है, अदरवाइज मैं इसको होल्ड नहीं कर पाऊंगी, है ना. ऐसे मैंने सिर्फ इसको देखा और देख के मैंने इसको बोला गिरना मत, होल्ड होल्ड, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. इंटरैक्शन, कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड. सो कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जहां पर कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, ओनली इंट्रैक्शन इज रिक्वायर्ड, लेकिन टच इज नॉट रिक्वायर्ड. अभी देखते हैं आगे समझ में आएगा. कॉन्टैक्ट फोर्स कैन बी ऑफ 2 टाइप, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर ऑफ 3 टाइप, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड अदरवाइज मैं इसको होल्ड नहीं कर पाऊंगी, है ना. ऐसे मैंने सिर्फ इसको देखा और देख के मैंने इसको बोला गिरना मत, होल्ड होल्ड, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. ग्रेविटेशनल नाम से सब पता ही है, पहले से पढ़ा हुआ है ना. यहाँ पे कभी भी इन तीनों में क्या होता है? टच इज नॉट रिक्वायर्ड, दूर से ही काम हो जाता है. Let's find out more about contact and non-contact force with the help of this differentiation. Okay, types of differentiation point. Contact force अभी मैंने समझा दिया ऑलरेडी, उसकी लैंग्वेज है सिर्फ. These kind of force are applied when 2 or more objects are in contact with each other. यहाँ पे क्या होगा? The bodies are not in contact yet they can exert force upon each other. यहाँ पे contact नहीं होता लेकिन तब भी force पूरा लगता है. एग्जाम्पल लिखने हैं, मस्कुलर एंड फ्रिक्शनल, ड्रैग फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो बेसिकली उनकी डेफिनेशन और उनका एग्जाम्पल, यही डिफरेंशिएशन का पॉइंट है और ये 2 मार्कर में आता है. दिस इज अ 2 मार्कर क्वेश्चन.
ठीक है, यहाँ पे ये ड्रैग क्यों लिखा हुआ है? ड्रैग इज एक्चुअली द अनदर नेम ऑफ एयर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो यही जब वही फ्रिक्शन सॉलिड से एयर में लगता है ना, तो उसको ड्रैग, एयर और लिक्विड में लगता है, उसको ड्रैग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको हमें पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में, वहां पे फ्रिक्शन चैप्टर में डिटेल में। ठीक है, चलो लेट्स सी वन बाय वन द टाइप्स ऑफ फोर्स। द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज मस्कुलर फोर्स। इट्स वेरी इजी, है ना, बस थोड़ा बहुत आपको लैंग्वेज इसमें याद करने की जरूरत है, बाकी कुछ दिमाग में लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो व्हाट इज मस्कुलर फोर्स? जहां पे मसल्स चाहिए, जहां पे मस्कुलर मसल्स का यूज होता है। ठीक, क्या है? इट इन्वॉल्व्स द एक्शन ऑफ मसल्स। ड्यू टू दिस फोर्स वी आर एबल टू पुश और पुल। जब भी हम किसी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो वहां पे हम पूरे का पूरा क्या फोर्स यूज कर रहे हैं? मस्कुलर फोर्स, है ना। एनिमल्स ऑल्सो मेक द यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स। बुलक कार्ट, ऑक्स कार्ट, हॉर्स कार्ट, जितने भी है ना, वो सब वहां पर क्या होते हैं? जो एनिमल्स यूज कर रहे हैं, वो अपनी मसल्स का ही तो यूज करते हैं। ठीक है, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ये देखो, ये सारे एक्शंस में यहाँ मसल्स का यूज हो रहा है। पुशिंग, हैमरिंग, ये ऑक्स कार्ट, और यहाँ पे देखो ये इसको ड्रैग करके लेके जा रहे हैं। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब होता है रगड़ना। ठीक है, ये देखो ऐसे हाथ, हैंड्स के बीच में फ्रिक्शन करो, तो क्या कर रहे हैं हम? एक्चुअली इनको हम रब कर रहे हैं आपस में। सो फ्रिक्शन इज बेसिकली रबिंग, isn't it? Let's have a look. Frictional force always act between the two moving objects which are in contact with each other. इसका मतलब क्या है? देखो, कभी भी फ्रिक्शन कहाँ लगता है? फ्रिक्शन लगता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जब वो आपस में रगड़ते हैं, तो कॉन्टैक्ट इज देयर, है ना, कॉन्टैक्ट हो गया, उसके बाद उसमें रबिंग हो रही है, तब फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, इसको समझने के लिए लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। ये देखो, यहां पर दो सरफेस है, ठीक, और ये फुटबॉल है, सेम फुटबॉल। यहां पर आप इसको मूव कर रहे हो टाइल्स में, और यहां पर आप कर रहे हो इसको बाहर जाके ग्राउंड में। ये ग्राउंड का पिक्चर है। ठीक है, सेम फोर्स लगाने के बाद कहां पर बॉल ज्यादा दूर तक ट्रैवल करेगी? बताओ, कमेंट करके बताओ अभी, कहां पे ज्यादा ट्रैवल करेगी? व्हेन वी विल अप्लाई सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, लेट्स से 10 न्यूटन का फोर्स दोनों पे लगा लिया, तो इस 10 न्यूटन के फोर्स से in this first condition, condition A, the ball will move further, है ना, बहुत दूर तक जाएगी, यहां पर जल्दी रुक जाएगी। क्यों? बिकॉज बॉल और ग्राउंड के बीच में यहां फ्रिक्शन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि सरफेस बहुत रफ है। जहां पर रफ सरफेस होती है, वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होता है, isn't it? Okay, have you seen ice hockey? आइस हॉकी में क्या होता है? हॉकी खेल रहे होते हैं, लेकिन बड़े आराम से स्लिप होके यहाँ से वहाँ जाते हैं और फिर बॉल को मारते हैं। और वही हॉकी आप ग्राउंड में खेल लो, पसीने छूट जाएंगे, होगा कि नहीं? यस, वाई? बिकॉज वहाँ ग्राउंड में फ्रिक्शन है, आपको बहुत अपने से ताकत लगानी पड़ती है उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, isn't it? Yes, so here what we have learned, friction is rubbing that happens between two objects when they come in contact with each other. Due to friction, the moving objects stop. फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द मोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगर ये मूविंग ऑब्जेक्ट है तो इसको फ्रिक्शन रोकेगा। जहां फ्रिक्शन ज्यादा होगा वहां जल्दी रुकेगा। फ्रिक्शन कहां ज्यादा होगा? जहां ज्यादा अनइवन सरफेस होगी। तो यहां पर दिख रहा है कि फ्रिक्शन यहां ज्यादा है। ठीक है, चलो फ्रिक्शन के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट्स टेक अ हॉल्ट हियर एंड सी। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे मैंने बताया था, फ्रिक्शन से हमेशा चीजें रुकती हैं। अगर मूव कर रहा होगा तो रुक जाएगा। ठीक है, कितना रुकेगा, कितनी जल्दी रुकेगा, ये डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कितना ज्यादा है। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। हमने ये देख लिया। गॉट इट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रिक्शन दैट वी नीडेड टू स्टडी इन दिस चैप्टर। मूविंग अहेड, वी आर मूविंग फॉर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द टाइप ऑफ फोर्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। इलेक्ट्रॉन सुना है कभी? इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। ओके, अच्छा, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज नहीं, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों ही एक्शन में होते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इज ऑल बिकॉज ऑफ द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इनके ही इंट्रैक्शन, कैसे इंट्रैक्शन हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट there can be repulsion or there can be attraction. I hope you know this. When two same charges are near to each other, they will repel. When opposite charges will be near to each other, they will attract. Have a look here.
This electrostatic force come into play due to the interaction between the charges, that is positive and negative charge. Both repulsion and attraction both are possible. देखो attraction भी हो सकता है, repulsion भी हो सकता है. Important point. अच्छा, इसके आगे देखो यहाँ पर सेम चार्ज है, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो रहा है, दूर जा रहे हैं, रिपल्शन. न्यूट्रल है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा. यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं. ठीक है. सो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बोथ आर पॉसिबल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मूविंग अहेड, नेक्स्ट मैग्नेटिक फोर्स. 6 और 7 दोनों में पढ़ा हुआ है मैग्नेट्स के बारे में, है ना. मैग्नेट्स में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं. जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ सेम पोल होंगे तो रिपल्शन हो जाएगा, अपोजिट पोल होंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा, है ना. यहां पर भी कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती, ओनली इंटरेक्शन इज रिक्वायर्ड. सो फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल. मैग्नेटिक फोर्स लगाने के लिए दो मैग्नेट हमेशा जरूरी नहीं होते हैं, है ना. मैग्नेट से मैग्नेटिक मटेरियल भी अट्रैक्ट हो सकता है, जैसे आयरन नेल मैग्नेट तो नहीं है ना, लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर. सो व्हेन वी विल ब्रिंग द मैग्नेट नियर दैट आयरन नेल, वी विल सी मैग्नेटिक अट्रैक्शन. ठीक. सो इट कैन बी पॉसिबल ऑन मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल. हियर रिपल्शन एंड अट्रैक्शन बोथ कैन टेक प्लेस अगेन. इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों था, यहां पर भी है. सेम पोल रिपेल ईच अदर, अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर. यू नो दिस. ये देखो डायग्राम में पता पड़ रहा है. नॉर्थ नॉर्थ अट्रैक्ट करेंगे, साउथ साउथ हो या फिर नॉर्थ नॉर्थ होंगे तो रिपेल करेंगे. ठीक है. ओके. सो दीज टू वर वेरी इजी वंस. नाउ मूविंग अहेड, हियर वी गो. नाउ कमिंग टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस इज द इंट्रोडक्टरी टॉपिक फॉर यू हियर. 9th में जाके डिटेल में पूरा चैप्टर है ग्रेविटेशन पे. ठीक है. तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में प्रॉपर तरीके से समझ लो, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए. ठीक है. व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स इज द यूनिवर्सल फोर्स. पता है, दिस इज द फोर्स विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स एंड इट एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज. ठीक. यानी कि मैं और ये बोर्ड, हम दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है. दो प्लैनेट्स, कोई भी दो प्लैनेट, उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है. ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज में है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में है. अगर मैं यहाँ पे हूँ और सपोज ये कैमरा है तो हम यहाँ पर भी है, लेकिन हमें पता नहीं पड़ता. क्यों? बिकॉज बहुत वीक होता है. ठीक है. ग्रेविटेशनल फोर्स मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और उनके बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन होता है, कितना भी वीक हो लेकिन होगा पक्का. सो दैट्स वाई इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स. गॉट इट? एंड इन दिस टाइप ऑफ फोर्स देयर इज ऑलवेज अट्रैक्शन. यहाँ कभी रिपल्शन नहीं होता, यहाँ पे हमेशा अट्रैक्शन ही होता है. इससे पहले वाले दो फोर्स में अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों ही पॉसिबल था, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में देयर इज ओनली एंड ओनली अट्रैक्शन. ठीक है. ओके, लेट्स हैव अ लुक. It is a universal force due to which each and every object in this universe attract each other, and gravitational force always attracts, it never repels. ठीक है. अच्छा, you must have heard the word gravity. पता होगा ना. ग्रेविटी कहाँ पे होती है? अर्थ इज हैविंग ग्रेविटी. हम बोलते हैं अर्थ में ग्रेविटी है, जिसकी वजह से सारे सामान हमारा नीचे को गिरता है. एवरीथिंग फॉल्स डाउन टुवर्ड्स द अर्थ. एक्चुअली ग्रेविटी इज अनदर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स सेम नहीं है. ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? यूनिवर्सल फोर्स है, जो कि हर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है. ग्रेविटी हम कहां पर बोलते हैं? ग्रेविटी इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी ऑब्जेक्ट एंड सेलेस्टियल बॉडी और एनी प्लैनेट. यानी कि प्लैनेट और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच के जो अट्रैक्शन है उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं. ठीक है. सो हियर वन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी द प्लैनेट. Am I clear? Okay, have a look here. When gravitational force is applied by a planet or celestial body, in that case it is called gravity. In case of gravity, it is always the planet which seems to attract. देखो, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है? मास पे, है ना. दो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है कि वो कितना एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. अब हमारे और अर्थ के बीच में, लेट्स से अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ और हमारे बीच का मास, वी आर नथिंग इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ द अर्थ. तो यहाँ पर क्या होता है? अट्रैक्शन दोनों के बीच में है. हम भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं और अर्थ भी हमें अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन क्योंकि हमारा मास नेग्लिजिबल है तो हम उसको अपनी ओर खींचते हुए नहीं दिखा सकते. आती नहीं अर्थ, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है. तो हम होता क्या है? वी आर फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ. गॉट इट? एंड व्हाई इट इज हैपनिंग? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ह्यूज मास ऑफ द प्लैनेट. तो प्लैनेट का मास इतना ज्यादा होता है कि सारे ऑब्जेक्ट उसी की तरफ गिरते हैं. ठीक है. ओके, मूविंग अहेड. नेक्स्ट, ये देखो, बॉल को नीचे फेंकोगे, एप्पल नीचे गिरा, न्यूटन के सर पे लगा, और तब से हम ये सब पढ़ रहे हैं, है ना. ओके, नाउ सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द यूनिवर्सल फोर्स. व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स
act between the two objects and one of the object is a planet, we call it gravity of that planet. Clear? Chalo. This was all about the force. I hope things were clear. We have understood what is force, push or pull, and we got to know the characteristics of force, balanced and unbalanced force, their differentiation, types of force, contact, non-contact, and every detail about them. So we are done with the force, and now we are moving to the next topic of the chapter, that is pressure. Pressure and force, are these two different things? You must have heard people saying, चलो चलो जोर से ताकत लगाओ, है ना, प्रेशर लगाओ, ताकत नहीं है क्या? Now takat is all force. So is this force and pressure, these two are different things or are they same things? Actually the pressure is all because of force only. जितना हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, लेकिन हम वो फोर्स कितने एरिया में लगा रहे हैं ये डिटरमाइन करता है कि उसमें से कितना प्रेशर प्रोड्यूस होगा. ठीक है. सो हेयर व्हाट कम्स इनटू द पिक्चर? एरिया. लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ दिस प्रेशर. The force acting upon unit area is called pressure. The force word is there and acting upon unit area. ठीक है, that is pressure. How you will write it mathematically? Pressure is equals to force per unit area means upon area. Area is A. This is the mathematical symbol for pressure and this you have to use while solving the numericals. ठीक है, इसकी यूनिट निकालते हैं. फोर्स का यूनिट क्या होती है? न्यूटन. एरिया की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर. सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक. और द एसआई यूनिट ऑफ force SI unit of pressure is also Pascal, which can be written as PA. its symbol is PA. ठीक है. अब देखो ये कैसे डिपेंड होता है फोर्स और एरिया पे. यहाँ पे देखो, here pressure is in numerator और force is also in numerator. So actually they are, we can say, directly proportional to each other, है ना. तो फोर्स अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, ये तो पता ही हमें. जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना प्रेशर क्रिएट होगा, है ना. लेकिन हैव अ लुक एट द एरिया. area is in denominator, so we can say they are actually inversely proportional to each other. Inversely proportional में क्या होता है? अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा और एरिया अगर कम हो जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. इसको समझने के लिए यहाँ देखो एक क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स से हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है. दो कंडीशन है, हम 10 न्यूटन का फोर्स पे लगा रहे हैं. ठीक. अब हम पहली कंडीशन में लगा रहे हैं जहां पे हम सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर एरिया में इस 10 न्यूटन फोर्स को लगा रहे हैं. द अनदर कंडीशन इज देयर वेयर वी आर अप्लाइंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इन 5 मीटर पर स्क्वायर एरिया. ठीक है. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P. देखो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? 10 पास्कल, है ना, और 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और यहाँ पर क्या आएगा आंसर? यहाँ पर आएगा 5 2 10, तो 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सी द डिफरेंस. Both same amount of force we are applying, but as we have changed the area, lesser is the area, more is the pressure. More is the area, lesser is the pressure. So they are opposite, यानी inversely proportional to each other. अब ये तो था न्यूमेरिकल बेसिस पे, है ना. ये हमने सॉल्व करके समझा दिया कि कैसे एरिया पे प्रेशर डिपेंड करता है. Now let's see with the help of an activity that how this area is changing the pressure. ठीक है. Let's go into our activity zone. Here in front of me, I am having one thumb pin, single thumb pin, and a set of thumb pin like this. This set has been made by pasting all the thumb pins together in the double side tape. Got it? Now what else we need to do? We need 2 balloons which should be of almost same size. दोनों में बिल्कुल सेम हवा भरी है, सेम साइज के हैं और सेम क्वालिटी के भी हैं. ठीक है. Now while doing the experiment, you have to keep it in mind that you will apply same amount of force with both type of thumb pin, single one also and the set one also. ठीक है. Now have a look here. First is I am going to prick with the help of one single thumb pin this pink balloon. ठीक है. What happens? A simple prick without any force. बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया मैंने, सिर्फ उसको टच किया है. ठीक है. Now let me do the same experiment with the help of this set of thumb pin. ठीक है. सेट ऑफ थंब पिन लगाने से पहले एक बात ध्यान में रखनी है कि एक पिन पहले नहीं लगनी चाहिए सरफेस पे, ये सारी के सारी पिन एक साथ लगनी चाहिए. ठीक है. लेट्स हैव अ लुक हियर. सी हाउ मच फोर्स आई एम अप्लाइंग. देयर इन द पिंक बलून आई हैवंट अप्लाइड एनी फोर्स. हियर आई एम ट्राइंग टू प्रिक इट हार्ड, वेरी हार्ड, बट स्टिल देयर इज नो इफेक्ट. Isn't it? Why? Because surface area is more. When surface area is more,
then pressure is less. The same force gives the less pressure. I hope this activity was fun to watch and this gave you a proper understanding that how surface area is affecting the pressure. Now we are going for some practice questions. देखो पहले एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे इजी सा, वैसे न्यूमेरिकल है कुछ नहीं, बहुत इजी है, ठीक है. Find the surface area of a trampoline on which a boy is applying the pressure of 90 Pascal by putting 270 Newton of force. तो given क्या है आपको आंसर? What is given? Always write down given while solving the numericals. Pressure is 90 Pascal और force is 270 Newton. क्या निकालने के लिए बोला है? Surface area. तो area you have to find out. Simple है. We know that P is equals to force upon area और area निकालना है ना, तो इसको ऊपर लेके जाते हैं और ये प्रेशर नीचे आ जाएगा. एरिया इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन प्रेशर. फोर्स दिया हुआ है आपको 270, प्रेशर इज 90. इजी. 9 3 27, 3 मीटर स्क्वायर. करेक्ट. सो दिस वे some simple questions you might see, numericals you might see in your examination. ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं आते हैं because this is the beginning of the physics, है ना. 9th में जाके अच्छे से न्यूमेरिकल का पता पड़ेगा, ठीक है. चलो, here now on this topic there are some conceptual questions which are actually tough to understand. So what I have done here I have summarized some questions for you in 2 parts. यहाँ देखो, फर्स्ट पार्ट ये सेट ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है. इन सभी का आंसर सेम होगा, सभी का आंसर. तो अगर कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यू कैन राइट डाउन. यहां देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वी सीव क्लोथ्स विद द पॉइंटेड एंड ऑफ नीडल. हम ये पॉइंटेड वाले एंड से क्यों सिलते हैं, यहां से क्यों नहीं सिलते हैं दूसरे कोने से, ठीक. यहाँ पे देखो, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू कट वेजिटेबल थ्रू द ब्लंट एंड. ये जो ब्लंट एंड है वहां से हम क्यों नहीं काटते, वहां से डिफिकल्टी क्यों होता है काटना, हमेशा शार्प एंड से क्यों काटते हैं, ठीक. यहाँ पर व्हाई डू वी हैमर नेल फ्रॉम द पॉइंटेड एंड. हम हमेशा कील को ना ऐसे इस एंड को लगाते हैं ना वॉल पे, तब जाके हैमर करते हैं, उल्टा क्यों नहीं करते हैं. दिस वन, व्हाई वी ऑलवेज ट्राई टू प्रिक बलून विद द शार्प ऑब्जेक्ट. कभी भी बलून फोड़ना होता है ना जब बर्थडे में, तो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कोई बोलता है कि हैमर लेके आओ बलून फोड़ने के लिए. नो, you always find out a toothpick or a very pointed thing. Yes or no? So why it happens? Now in these all questions, if you will observe, we are talking about the pointed end. हम ये देख रहे हैं कि हमारे लिए pointed वाला यानी कि less area वाला area कैसे helpful है. ये सारे क्वेश्चन में वही है ना, pointed end of needle, sharp end of this knife, pointed end of this balloon, isn't it? तो हम यहाँ पर सरफेस एरिया जहाँ पर कम है वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है, हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक. तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए ना, देयर इज अ फिक्स्ड फॉर्मेट और यू कैन से फिक्स्ड लाइन. इफ यू विल राइट दोज यू विल नेवर गो रॉन्ग. ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट द आंसर विद द फर्स्ट लाइन दैट इज द प्रेशर एंड एरिया रिलेशन, ठीक है. यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें बताना है कि जो लेसर एरिया है वो कैसे हेल्पफुल है ना. तो कैसे आंसर स्टार्ट करेंगे, द फर्स्ट लाइन शुड बी लेसर is the surface area, more will be the pressure. This is the first line, ठीक है. आपको ये पहले बताना है कि आप कॉन्सेप्ट पता है. तो lesser is the surface area, more will be the pressure. अब क्वेश्चन पे आ जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे. Lesser with the surface area, more with the pressure. So, if we will sew the cloth with the pointed needle, we will be able to apply more pressure with the same amount of force. ठीक है. यहाँ पे क्या बोलेंगे, as we know, lesser is the surface area, more will be the pressure. So, if we cut from the sharp end, we are able to apply more pressure in comparison to the blunt end. ठीक है. यहाँ पे देखो, as we know, lesser is the surface area, more is the pressure. So, if we will hammer the nail from the pointed end, more pressure will be created and it will go easily. है ना, इजी. लास्ट वाला, why do we prick balloon with a sharp object? As we know, lesser is the surface area, more will be the pressure. So if we will prick the balloon from the sharp end, we will be able to apply more pressure and the balloon will burst nicely or fast. कुछ था टफ, कुछ नहीं था ना, इजी है. देखो, अब देखो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है. पहला वाला, why it is difficult to walk with the heels on the sand than the big shoes.
ये देखो, अगर सैंड पे जा रहे हो तो कौन सा वाला स्लीपर प्रेफर करोगे, ये वाला या फिर दूसरा इस तरफ वाला? ऑब्वियसली फ्लैट वन, हील वाले में कोई नहीं जाएगा। अब उसको साइंस में कैसे लिखेंगे, देखो अभी ये देखो, टैंक में वाई देयर इज अ ब्रॉड बेल्ट, क्यों ऐसे ब्रॉड बेल्ट लगी होती है? वाई डेजर्ट टैंक्स हैव दिस ब्रॉड चेन ऑन द व्हील्स? हियर वाई शोल्डर बैग्स हैव ब्रॉड स्ट्रैप, जो आप स्कूल में बैग लेके जाते हो उसके शोल्डर स्ट्रैप बहुत चौड़े से होते हैं, ऐसे थिन रोप के नहीं बने होते हैं। वाई डू पोर्टर्स कीप अ बिग राउंड क्लॉथ ऑन देयर हेड बिफोर पुटिंग द लगेज? अब देखो, इन सारे ही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर सरफेस एरिया बड़ा होगा तो आपके लिए कैसे हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आंसर कैसे शुरू करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको पता पड़ रहा है कि सरफेस एरिया ज्यादा क्यों चाहिए, ये पूछा हुआ है, तो आपका आंसर कैसे स्टार्ट होगा? एज वी नो, अगेन एज वी नो, मोर इज द सरफेस एरिया, lesser will be the pressure। बस पहली लाइन ने सारा आंसर कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन, as we know more is the surface area, lesser with the pressure, if we will walk with flat shoes on the sand it will create less pressure and we will be able to walk comfortably। यहां वाले में देखो, desert tanks, as we know more is the surface area, lesser is the pressure, so the broad chain actually increases the surface area which is touching the sand, due to which less pressure is created on the sand and the tank can go comfortably or the tank can move easily। ठीक है, now why shoulder strap? More is the surface area, lesser is the pressure, so the bag will exert less pressure on our shoulder and it will be easy to carry। यहाँ वाला, why do porters keep this background? Because more is the surface area, lesser is the pressure, so this more surface area will distribute the force exerted by the object on the head and it will create less pressure on the head। ठीक है, तो यानी इसी लाइन को आपको हर क्वेश्चन के हिसाब से लास्ट में मॉडिफाई कर देना है और सब चीजों के आंसर आपको आ जाएंगे। ठीक है, आई होप you were able to understand the concept of pressure and how you have to answer। बेटा ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में ना आधे बच्चों की लैंग्वेज यहाँ वहाँ हो जाती है और आंसर कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई गिवन यू दिस ट्रिक, ऑलवेज फॉलो। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कि क्या पूछा हुआ है, आपसे शार्प एंड पूछा हुआ है या फिर आपसे ब्लंट एंड, यानी कि आपसे लेस सरफेस एरिया के बारे में पूछा जा रहा है कि आपसे ब्रॉड सरफेस एरिया के बारे में। उसके अकॉर्डिंग अपनी ये वाली लाइन मॉडिफाई कर लो, अपने आप आंसर बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलो मूविंग अहेड। सो नाउ वी आर मूविंग फॉर फ्लूइड प्रेशर। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा और प्रेशर वहां पर एवरीथिंग वी वर टॉकिंग अबाउट वाज सॉलिड, है ना। हम दो सॉलिड्स के बीच में कैसे प्रेशर एक्ट करता है वो पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे फ्लूइड प्रेशर के बारे में। तो फ्लूइड में पहले आएंगे हम लिक्विड प्रेशर एंड देन वी विल गो फॉर एयर प्रेशर। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर में हम पहले क्या बताया था, लिक्विड। सो लेट्स टॉक अबाउट लिक्विड फर्स्ट। Liquid exerts pressure on the walls of the container in which they are put in। अब इस टफ सी लैंग्वेज को ना थोड़ा इजी बनाते हैं। Let's move again into our activity zone and see some activities। Now to check out more about the fluid pressure or liquid pressure, let's do some activities। Here I am having two different bottles which are filled with different amount of water। Can you see? Here the column is more, here the water is less in this column, isn't it? So more water, less water। Now see the difference between these two balloons। If you will check out properly, the size of the red one, the red balloon is bigger than the size of the orange balloon। Yes or no? So more is the water in the column, more pressure it will exert at the bottom। Yes or no? Have a look once again। More water, more pressure at the bottom, less water, less pressure at the bottom। Okay, for the second activity I have taken again same type of bottle। Now this bottle is having same size of holes at the same depth, all the holes are at the same depth। Now if I will put water in it, see the effect। Can you see? The water is coming out from all four sides with equal pressure। See the stream, they all are of same type। Yes or no? This activity suggests that pressure, that liquid exerts same amount of pressure at same depth। Got it?
Moving to the third activity, here again I am having the same type of column which is having 3 different holes at 3 different levels. Now let's put water in that. See the difference. Okay, water is less, so water has not reached to the third hole, but still you can see the difference here in these two. See the difference in the pressure of water. So what it suggests, more is the depth, higher is the pressure. So this is the third property of fluid pressure. This activity also suggests that water exerts pressure on the walls of the container. Got it? So these are the 4 properties of water pressure or fluid pressure that you need to know. Now coming back from our activity zone and see what all we have done. We have done these 4 activities. Yes or no? ये है column वाला activity, ये है जहाँ पर हमारा level different था, ये है same level पे water pressure और ये है water on exerting on the walls of the container. ठीक है? ये पिक्चर आइडेंटिफिकेशन में क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्कर क्वेश्चन में, जो डिवीजन होता है ना 1 1 2 2 मार्कर क्वेश्चन में, उनमें ये क्वेश्चन बहुत आते हैं. ठीक है? सो पिक्चर आइडेंटिफिकेशन अच्छे से कर लो. दैट्स व्हाई आई हैव डन दिस एक्टिविटी, सो दैट यू विल गेट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी एज वेल. ये वाले में इसका पिक्चर आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये क्या बता रहा है, ये लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इसकी जगह कुछ और लिख दोगे ना, लाइक इफ यू विल राइट डाउन दैट मोर प्रेशर at the bottom than surface, then no, this is not showing that more pressure at the bottom than top. This picture is showing this line, this property of pressure. ठीक है? तो proper line दिखना जरूरी है. यहाँ पर क्या लिखेंगे? This picture is showing that more is the height of column, more will be the pressure at the bottom. ठीक है? This picture is showing that the pressure is always more at the depth then at the upper surface. डेप्थ में प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा कंपैरिजन टू दी अपर सर्फेसेस. ठीक है? हियर लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर एट इक्वल डेप्थ. इससे क्या पता पड़ रहा है? सेम डेप्थ पे है ना सारे होल, सो इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर एट इक्वल डेप्थ. एंड व्हाट इट इज शोइंग, लिक्विड ऑलवेज एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. एम आई क्लियर? ओके, ये देखो इन सबकी लैंग्वेज है, यहाँ पर पढ़ लो. हमने जो एक्टिविटी में बोला और अभी मैंने बताया वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है? एंड द सेम लैंग्वेज इज गिवन इन द एनसीईआरटी बिलो दीज ऑल पिक्चर्स which are already there in your NCERT. Got it? Just read them before going for your examination. बाकी समझ में तो आ ही गया होगा. ठीक है? चलो मूविंग अहेड. नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देखो एटमॉस्फेयर में क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है बताओ? हमारे एटमॉस्फेयर में है एयर, है ना? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एयर प्रेशर, यानी गैशियस प्रेशर. ठीक? लेट्स हैव अ लुक हियर. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हमारे ऊपर जितना भी एयर है उसका प्रेशर को ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. अच्छा, ये एयर का प्रेशर क्यों होता है बताओ? इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटी. ठीक है? देखो हमें पता है ना कि किसी भी चीज में अगर थोड़ा सा ही मास होगा तो वो नीचे को आएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. तो एयर पार्टिकल में कुछ तो मास होता है, भले ही वो नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, लेकिन अगर बहुत सारी गैस आपस में होगी तो देखो अगर बहुत सारी गैस होती है तो उस गैस सिलेंडर कितना हैवी हो जाता है ना? तो गैस में भी मास होता है. सो बिकॉज ऑफ दैट गैस यानी एयर इज ऑल्सो पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ. अब अगर वो नीचे को आ रही तो यानी कि प्रेशर डालेगी ना नीचे को. सो दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल. हैव अ लुक. Atmospheric pressure is caused by the gravitational attraction of the planet on the gases above the surface. ठीक है? Okay. Moving ahead. More is the weight of air molecule above the atmosphere, more will be the atmospheric pressure. ये देखो एक एग्जांपल देखते हैं. Let's say ये कोई है चिंटू जो सी लेवल के पास है, ये यहाँ पर सी है, और कोई एक यहाँ पर है मिंटू जो माउंट एवरेस्ट पे जाके खड़े हैं यहाँ पर. ठीक है? So these are 2 person A and B, Chintu and Mintu. One is standing here near the seashore और the other one is standing at the top of a hill, let's say Mount Everest. ठीक है? अब इसके ऊपर एयर पार्टिकल होंगे, है ना? इसके ऊपर ये बहुत सारे एयर पार्टिकल होंगे. लेट्स से हमारा अर्थ का सरफेस यहाँ से शुरू, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसके ऊपर ये इतने सारे एयर पार्टिकल हैं. अब अगर हम काउंटिंग में बोलें तो लेट्स से यहाँ पर 10 मिलियन एयर पार्टिकल है, मान लेते हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा होंगे. 10 मिलियन एयर पार्टिकल हैं इसके सर के ऊपर. ठीक? अब इसके सर के ऊपर कितने होंगे बताओ?
अगर ये माउंट एवरेस्ट पे आके खड़े हैं तो इसके ऊपर मुश्किल से 1 मिलियन होगा, है ना। तो अगर इसके ऊपर 10 मिलियन पार्टिकल हैं और इसके ऊपर 1 मिलियन पार्टिकल हैं तो किसका प्रेशर ज्यादा होगा बताओ। देखो, अगर आपके सर के ऊपर 10 केजी का वेट हो और आपके सर के ऊपर 1 केजी का वेट हो, कौन ज्यादा प्रेशर लगाएगा? 10 केजी वाला, है ना। द सेम थिंग है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे होता है, सी लेवल के पास होता है, यानी कि यू कैन से एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो रहा है वहां से और उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। ठीक है, देखो जितने ज्यादा डिस्टेंस उतने ज्यादा एयर पार्टिकल उसके सर के ऊपर और उतना ज्यादा प्रेशर। माउंट एवरेस्ट पे खड़ा है ना, तो जो आपका अर्थ एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो रहा है वहां से और उसके सर के बीच में थोड़े से एयर पार्टिकल हैं, तो उतना ही कम एयर प्रेशर। ठीक है, बेस्ड ऑन दीज देयर आर सम क्वेश्चंस। why do we feel suffocated when we go in the higher altitude? Why we feel shortage of breath when we go in the higher altitude? Because वहां पर होता क्या है, एयर प्रेशर कम होता है। अगर एयर प्रेशर कम होगा तो हम इनहेल, जितनी गैस हम नीचे इनहेल कर सकते हैं उतनी नहीं कर पाते हैं एयर प्रेशर कम होने की वजह से। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी फील शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ देयर। मूविंग अहेड, ये देखो, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ना हम बड़े हल्के से लेते हैं ऐसे, अच्छा एयर प्रेशर ही तो है, क्या फर्क पड़ रहा है ना। नो, हैव अ लुक। Now let's say this imaginary column is there from our head to the point from where this atmosphere is starting. ठीक है, और कॉलम कितने का होना चाहिए? 15 बाय 15 सेंटीमीटर का। 15 सेंटीमीटर जो नॉर्मल स्केल आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होती है वो वाली स्केल, तो 15 सेंटीमीटर का एक ऐसा कॉलम होना चाहिए, रेक्टेंगुलर कॉलम, फ्रॉम योर हेड टू द पॉइंट जहां से एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो रहा है ना। तो कितना प्रेशर लगेगा पता है आपको? उससे लगता है एज लार्ज एज 2500 न्यूटन का फोर्स लगाता है वो जितने गैस पार्टिकल उस कॉलम में होंगे वो आपके लगभग 2500 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अब इतना मैसिव आपके सर पे प्रेशर लग रहा है, हमें फील क्यों नहीं हो रहा? हम क्यों इसके ऊपर ऐसे मतलब क्रश क्यों नहीं हो जा रहे हैं? ठीक है, क्यों नहीं हो रहे हैं? बिकॉज वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज अवर बॉडी pressure is equal to the atmospheric pressure that is balances it out. Very very important line. जब भी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी बॉडी पे लग रहा है, हम क्रश क्यों नहीं हो रहे हैं? बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर भी तो एक प्रेशर है। कौन सा प्रेशर? ब्लड प्रेशर, दैट इज बैलेंसिंग इट आउट। और हमें वैसे भी फील नहीं होता क्योंकि वी आर बॉर्न एंड बॉट अप इन दिस इन्वायरमेंट, तो हमारी बॉडी ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी होती है इस प्रेशर के लिए। ठीक है, चलो मूविंग अहेड। नेक्स्ट, atmospheric pressure is applied in all direction because air molecules moves in all direction. अच्छा ये देखो, इसका मतलब हमने अभी तक क्या पढ़ा? ये जो पार्टिकल हमारे सर के ऊपर है हम पे प्रेशर लगा रहे हैं, लेकिन एक नई बात है, प्रेशर हमेशा ऐसे नहीं लगता। प्रेशर इज नॉट दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट वन डायरेक्शनल, इट इज नॉट डाउनवर्ड्स, इट इज फ्रॉम एवरीवेयर, इट इज अपवर्ड, दिस साइड, साइडवेज, फ्रॉम एवरीवेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज देयर, और वो भी बिल्कुल बराबर होता है। अब बोलो कि ऐसे कैसे बराबर होता है? बिकॉज एयर पार्टिकल्स आर नॉट स्टेगनेंट एट वन पोजिशन। एयर पार्टिकल क्या होते हैं? मूव करते हैं ना, रैंडम काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा, तो जो एयर पार्टिकल होते हैं वो रैंडमली यहाँ वहाँ मूव कर रहे हैं, इजंट इट? तो वो होता क्या है, जितना प्रेशर वो ऊपर होता है उतना ही हर तरफ से होता है। इसको समझने के लिए एक्टिविटी करते हैं। लेट्स गो टू आवर एक्टिविटी जोन एंड फाइंड इट आउट। लेट्स से आई एम हैविंग दिस transparent glass which is having water in it and a thin transparent sheet. Got it? If I will keep it over it, अभी ये इसके ऊपर रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने इसके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है and that's why it is not moving. Yes or no? If I will try to invert it, what should happen? ये पेपर नीचे गिर जाना चाहिए because gravity pull कर लेती है ना। तो now have a look. See. Why this paper is not falling? Why this polythene is not falling? Why the water is not coming down? Gravity is there, but it is not coming down. Why? Because atmospheric pressure is applying the pressure on this paper, this thin polythene, and that's why it is still stuck on the mouth of the glass. Got it? Let's understand more about the atmospheric pressure with the help of this object. Have you seen this object? This is a rubber sucker. You might have seen it. Yes. This is one of the very important question in your NCERT and it is given. Okay, why rubber sucker sticks on any surface? This is the question you might see in your examination. Okay, now let's find out the answer. What we do whenever we want to stick the rubber sucker on any surface, we usually find out the plane surface and then we try to press it on that surface. Yes or no?
Why? Let me check it out. Here is a plain surface and let me put this rubber sucker on this. I pressed it hard. Now see, it is not falling down. Now why it is not falling down? Why we pressed it hard? We pressed it hard so that all the air in between this surface and the rubber sucker can be removed. Now once it is done, now what is happening? All the air which is present in the surrounding, which is present around this rubber sucker, that air is pressing it on the surface, on the wall or on this board, due to which it is not falling down. Got it? So what is the answer? When we press rubber sucker on any surface, the air between the surface and the rubber sucker gets removed, or the vacuum is created there, due to which there is now only air which is present in the surrounding, and that air applies the pressure on the rubber sucker so that it gets stick on the wall or on the surface. Clear? So this is one of the questions that you might see in your examination. Let me remove it. Yeah, here we go. There is one more question on the basis of atmospheric pressure. Here we go. What it is? It is a dropper. Now, whenever you keep dropper on any of the container, fine, let me check it out. I'm not pressing it. I'm not doing anything. What is happening? Is there any water inside? No. Why? Because right now there is air inside this rubber and that air is countering the air which is outside. So atmospheric pressure is same all over. Now, when I evacuate by pressing this rubber and then I'm trying to put it inside the water, what will happen? As soon as I will release this rubber, what will happen? The water will come inside. Why? Because the air which is present in the surrounding, that is pushing this water inside. And see, can you see? Now water is there in the pipe. Yes or no? So this is one of the questions, that how the dropper works or how we drink the juice, how atmospheric pressure is related to that. So I hope you now got to know that how the rubber sucker works and how this dropper works and how atmospheric pressure is applicable while working of these two. Okay? And you might see these questions in your exam, the rubber sucker one especially, क्योंकि ये NCERT में दिया हुआ है. ठीक है? So with this, we are done with the chapter. I hope you understood the chapter in much better way because of all the activities and the fun, without putting lots of pressure and force in your head. Okay? Now, stay tuned for further videos. Soon I'll be getting the further chapters of your class, and spread the video among your friends. If you have not subscribed the channel, go ahead and subscribe for further updates. Okay? Till the time, take care and bye-bye.